اچھا سوچنے کی بات یہ سمجھنے کے لیے کہ تیار ہوگی کیسے، یہ بھی تو بات ہے نا جی. اب دیکھو بیاہ شادی میں جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو اس کی بھی تیاری کرتا ہے، کسی سفر میں جاتا ہے اس کی بھی تیاری کرتا ہے. بالکل. ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا جو ہر وقت لوگوں کو یہ فکر دلاتا تھا دیکھو بھائیوں اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے جانا ہے. اب سارے آدمی دنیا والے کام میں مشغول اور وہ کہتے تھے یار کیا پاگل ہے، ہر ٹائم یہی بولتا رہتا ہے، ہر ٹائم یہی بولتا رہتا ہے. اور اس کو بڑی تکلیف، تو لوگوں نے اس کا نام ہی پاگل رکھ دیا کہ وہ آیا پاگل، وہ آیا پاگل. اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ شکایت لے کے وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ کو کہنے لگا کہ بھائی میں ایسے ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. اور بادشاہ بھی انہیں کی طرح اس نے کہہ دیا سونے کی چھڑی نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی کہ ایسا کرنا جو تجھ سے زیادہ پاگل ملے اس کو دے دینا. اب یہ چلا گھوما گھوما سارے گھوما، اس کو ملا ہی نہیں کوئی. سب لوگ دنیا کے اندر مشغول ہیں، سب لوگ دنیا کے اندر مشغول ہیں، کوئی آخرت کی فکر ہی کسی کو نہیں ہے. اب یہ سارے گھومتا رہا اور جب اس کو کوئی نہ ملا تو اس کے دل کے اندر بات آئی، بادشاہ نے امانت دی کم سے کم اس کو واپس کر دیا. میں ٹھیک ہے میں پاگل ہی اچھا. اب جب آیا واپس آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے مرض الموت کے اندر گرفتار ہے اور دنیا سے تیاری ہو رہی ہے. اب جب بادشاہ کے پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ پڑا ہوا ہے نا، اور وہ آخری سال سے لے رہا ہے. تو بادشاہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کہ اب مت پوچھو میرا حال، میں اس دنیا سے بڑے دور جا رہا ہوں، بڑے دور جا رہا ہوں، وہاں سے واپس نہیں آؤں. اب یہ اتنی بات سننی تھی اور اس پاگل نے جس کا نام پاگل رکھا تھا وہ دیکھ رہا ہے کہیں یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، کہیں یہاں دیکھ رہا ہے. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا دیکھ رہا ہے، تیرے دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سفر کے اندر جا رہا ہوں اور کبھی میری واپسی وہاں سے نہیں ہوگی، کبھی میں وہاں سے واپس نہیں آؤں گا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس سامان کہاں ہے، وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس سامان کہاں ہے. وہ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگا بس یہی کمی ہے. کیا ہے؟ یہی کمی ہے کہ میرے پاس وہاں جانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. اور فٹافٹ اس نے وہ سونے کی چھڑی لی اور اس کے ہاتھ میں دے دی کہ بادشاہ مجھ سے زیادہ پاگل تو تو ہے، مجھ سے زیادہ پاگل تو ہے. ہاں تو فرمایا کہ اگر ہم دنیا کے اندر مشغول رہے اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں کریں تو ہم جیسا بیوقوف ہم جیسا پاگل کوئی نہیں ہے. کیونکہ مرنے کے بعد کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی نہیں جاتا. انسان اکیلا آیا تھا، اکیلا ہی دنیا سے جانا ہے. جس طرح آیا تھا اسی طرح جانا ہے، بنا کپڑوں سے آیا تھا، بنا کپڑوں سے دنیا سے جانا ہے. تو یہ اس کے کفن کے لیے چھوٹا سا کپڑا ایک فرمایا کہ اس حال میں سکندر بادشاہ تھا پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور آخری وقت میں اپنی وصیت کر رہا ہے اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ باہر نکالنا. ایسے پوچھا بادشاہ یہ کیسا، سکندر بادشاہ ایسا کیوں کر رہا کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ سکندر بادشاہ پوری دنیا کا مالک تھا، آج دنیا سے جانا تو کھا لیا، ساری دنیا کو پتہ چلے. تو اسی طرح بھائی ہم نے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں خالی ہاتھ جانا، صرف اپنے عمل لے کے جانا. اس لیے سب سے میری گزارش ہے ایک تو اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے اللہ کو ہمیشہ راضی ہو. اچھا اللہ راضی ہوتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے عمل سے. اللہ پیسے سے نہیں راضی ہوں گے، کوٹھی بنگلے سے راضی نہیں ہوں گے یا بڑی بڑی گاڑیاں لے کے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تو راضی ہوں گے اللہ والے اعمال سے. تو اللہ والے اعمال کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو نماز دی. اللہ نے کیا دیا؟ نماز دی. کہ ہم نماز کی پابندی رکھیں، یہ ہے اللہ کو راضی کرنے والا عمل. یہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا عمل. نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے. بلکہ وہ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور جا کے دونوں ہاتھ لگا کے اپنا سر لگا کے اپنا بدن جو سارا اللہ کے سامنے ڈال دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ، جب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، آؤ میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے سامنے جھکا ہوا ہے. فرشتے لاعلمی ظاہر کرتے ہیں اللہ ہم نہیں جانتے. پھر اللہ خود بتاتا ہے ان کو فرشتوں اس میرے بندے کو میری بندی کو صرف اور صرف میرا ڈر میرا خوف ہے جس کی وجہ سے میرے سامنے جھکا ہوا ہے. اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنی بندی کو اپنے بندے کو معاف کر دیا. یہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے والا جس کو چھوڑ کے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. خدا کی قسم اللہ نے 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، اس کے اوپر وہ وعدے کیے ہیں کہ پوری دنیا مل کے تو اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتی. وہ
खूब वादा किया अल्लाह ने, ये रोजियों की तंगी है, ये घरों की तंगी है, ये हमारी जरूरतों की तंगी, सारी चीजों को खत्म कर दिया अल्लाह ने। तुम नमाज पढ़ो सारी तंगियां दूर हो जाएगी, तुम नमाज पढ़ो सारी तंगियां दूर हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है। और फिर इसके बाद वादा किया है कि जब तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, जब तुम्हें कब्र में डाल दिया जाएगा, मैं तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है चीज को, मेरे बंदो झुको तो सही मेरे सामने, तुम्हारी कब्रों को मैं जन्नत का बाग बना दूंगा, जहां तुम अकेले होगे, अंधेरी कोठरी होगी, मैं तुम्हारे दिल बहलाने के लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दूंगा और जन्नत की खुशबू तुम्हें आती रहेगी, तुम चैन से सोओगे वहां पे। अल्लाह वादा करता है किस चीज के ऊपर? नमाज के ऊपर। फिर फरमाया जब तुम्हें मेरे सामने हशर के मैदान में खड़ा किया जाएगा है? और तुम्हें मैं कामयाबी के सर्टिफिकेट दूंगा, तुम्हें मैं कामयाबी के परवाने दूंगा, तो तुम्हारे लिए, नमाज पढ़ने वालों को कहा, तुम्हारे लिए मैं कामयाबी का परवाना दूंगा, तुम्हें नाम कामयाबी से बचा लूंगा मैं। वरना वो दिन तो इतना खतरनाक है जिसके लिए वो फरमाते हदीसों के अंदर आता है, जमीन ताबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, और ये सूरज इतने करोड़ मील दूर है, जिसकी थोड़ी सी तपश की वजह से हमें पसीने पड़ जाते हैं। ये बोला बिल्कुल सिरों के करीब होगा, बिल्कुल सरों के करीब होगा, और हर आदमी अपने अपने पसीने के अंदर गर्क होगा, हर आदमी पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। बाद लोग तो अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहे होंगे अपनी गुनाहों की वजह से। तो उस वक्त भी मेरा अल्लाह इस नमाज की वजह से हमें ऐसे आराम के अंदर रखेगा, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अल्लाह ने वादा किया है। फिर फरमाया नमाज की वजह से मैं तुम्हारे लिए पुरसरात का रास्ता आसान कर दूंगा। मेरे लिए सुनाना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन मेरे दोस्तों जब पुरसरात का रास्ता आएगा, फरमाया कि वो तलवार से ज्यादा तेज होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा, और जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ होगा। 500 वर्ष की चढ़ाई होगी, 500 वर्ष का प्लेन और 500 वर्ष की ढलान होगी। हर एक आदमी को वहां से गुजरना होगा, हर एक आदमी को। बाज के लिए यूं आया कि जो अल्लाह को राजी करके जाते हैं वो उस पुल से चले भी जाएंगे, लेकिन वो फिर भी कहेंगे ऐ अल्लाह हमें दुनिया के अंदर खबर पहुंची थी, एक पुल से तो है कहाँ कि अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह को राजी किया होगा इतना आसान कर देंगे, लोग गुजर भी जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और बाद लोगों के लिए बताया कि जिस तरह तुम अंधेरे कमरे के अंदर रोशनी करने के लिए बटन दबाते हो ताकि लाइट आ जाए, बाद लोग इस तरह से गुजर जाते हैं। और बाद लोगों के लिए कहा कि जिस तरह 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त लगता है, उतने वक्त के अंदर गुजर जाएंगे। क्यों गुजरेंगे भाई? क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी किया। और बाजों के लिए तो ये आया कि वो कट के जहन्नम में गिरेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बहुत टेढ़ा मामला है मेरे भाई, बहुत टेढ़ा मामला है। और आखिर के अंदर यूं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, मैं तुम्हें बिना पूछे, बिना रोके, बिना टोके, बिना हिसाब से जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये है अल्लाह को राजी करने का, और ये है आखिरत की तैयारी। अब हम गौर कर सकते हैं कि हम इस अमल को कितना कर रहे हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आप बहनों को भी, सब भाइयों को। ये है असल में, यह है कामयाबी, इसको कहते हैं कामयाबी। आज हम छोटे छोटे बहानों के पीछे, छोटे छोटे कामों के पीछे है अल्लाह के हुक्मों को तोड़े। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कल अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? घर का शौहर बाहर कमाने गया, बीवी को काम बता दिया, अगर बीवी काम नहीं करती तो कैसे शौहर को मुंह दिखाएगी कि उसने तो मेरे को काम बताया था। बच्चे को दुकान भेजा सामान लाने के लिए, काम बताया था और काम करके नहीं आया, अब कैसे बाप को मुंह दिखाएगा? तो हमें भी अल्लाह ताला ने काम दिया दुनिया के अंदर भेजने के ऊपर, अगर हमने उस काम को पूरा नहीं किया तो अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएंगे? कैसे खड़े हो पाएंगे अल्लाह के सामने? इसलिए फरमाया अगर अल्लाह पूछने भी आ गया, पूरी दुनिया मिलकर जो पानी के घूंट का हिसाब नहीं दे सकती, पूरी दुनिया एक पानी के घूंट का हिसाब नहीं दे सकती। हम क्या समझते हैं? हम ऐसे गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगी ऐसे गुजर रहे हैं। क्या अल्लाह हमें देख नहीं रहा है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए दोनों मोड़ों के ऊपर, दोनों मोड़ों के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर है हमारे, नेकी लिखने वाला भी, बदी लिखने वाला भी। हमें 5 मरतबा गुनाह करके पता भी नहीं चलता हम क्या गलती करके क्या नहीं, हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन फरिश्ते लिख लेते हैं। 5 मरतबा हम नेकी करते हैं, हमें नेकी करने का पता नहीं चलता कि हमने नेकी किया कि बद किया, फरिश्ते नेकी लिखते हैं। ये सारा रजिस्टर हमारा कल के हशर के मैदान के अंदर खुल जाएगा। इसलिए मेरी सब बहनों से और सब भाइयों से गुजारिश है कि हम पहले अल्लाह के बने फिर दुनिया के। इसलिए फरमाया जो सुबह सवेरे ना नमाज का आदी होता है वो अपने हाथ में ईमान का झंडा लेके होता है, और जो दुनिया का आदी है, दुनिया के मसलों में लगने वाला है, नमाज की कोई परवाह नहीं, शैतान का झंडा लेके घूम रहा है। क्योंकि शैतान ही तो नहीं चाहता कि नमाज पढ़ ले मेरे को, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ ले, शैतान नहीं चाहता। इसलिए मेरी बहुत जल्दी नहीं बहनों और मेरे भाइयों हम फिक्र करें इस बात
औलादों को भी समझाए लोग, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी सिखाए। आज हमने इनको दुनिया सिखाई है, अल्लाह से मिलना नहीं सिखाया। आज हमने इनको दुनिया के सारी सलाहियतें दी हैं, लेकिन कुरान की सलाहियत नहीं दी है। इसलिए अल्लाह ने हमें काम दिया है, हमें जिम्मेवारी दी है, तो हम अपने आप को नमाज का आदी बनाएं। यूँ फरमाया, हदीस के अंदर आता है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फरमाया जिन घरों के अंदर नमाज नहीं होती वो मानी इस तरह जिस तरह कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कहाँ नमाज होती है, बल्कि फरमाया कि नमाज जनाजा भी कब्रिस्तान से बाहर पड़ी जाती है। कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। तो जिन घरों के अंदर नमाज नहीं वो मानी इस तरह है, चाहे वो कितनी भी रौनक हो उस घर में, लेकिन है वो कब्रिस्तान की तरह। क्यों? क्योंकि वहाँ नमाज ही नहीं हो रही है। इसलिए हम हर एक घर के अंदर पाबंदी हो, हमारा एक माहौल हो, है सुबह उठ रहे हो, पूरा परिवार उठ रहा हो, सब अल्लाह के सामने झुक रहे हो। अल्लाह तूने जिंदगी दी है, तेरे सामने झुक रहे हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की इतना कमजोर थोड़ी है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह हमको झुक दे। आज कहते हैं जी लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, बरकत ही नहीं है घर के अंदर। हाँ जी, बरकत ही नहीं बोले घर के अंदर। बरकत आएगी कहाँ से जब तुमने बरकत का अमल ही छोड़ दिया। एक नमाजी था, बड़ा पक्का पाबंद, और वो उसके घर के अंदर कमा भी रहा, बरकत हो नहीं रही है। बड़ी परेशानी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है नमाज की पाबंदी करो, घर में बरकत हो जाएगी। अब बरकत नहीं हो रही तो किन्हीं बुजुर्गों के पास चला गया कि हजरत नमाज की पाबंदी है, सारी चीजों की पाबंदी है, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं है। तो उन्होंने उसके घर का हाल पूछा, उन्होंने उसके घर का हाल पूछा कि तेरा घर कैसे? मेरा घर रास्ते में है। अच्छा रास्ते में है तो ऐसा कर जाके कि अपने दरवाजों के ऊपर पर्दे डाल दे। क्या करते? पर्दे डाल दे। अब बुजुर्गों की बात मान तो ली, पूछना गवारा नहीं किया कि पर्दे से बरकत का क्या मसला है। अब चले गए, पर्दे डाल दिए, एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा गुजरा, घर के अंदर बरकत की बात लग गई। जो काम हजारों में नहीं बनता था आज 150 में ही हो रहा है। अल्लाह ने बरकत दे दी। रिज़्क़ तो उतना ही मिलेगा, लेकिन बरकत इसको कहते हैं कि जो काम हजारों में नहीं बनता वो 150 में बन रहा है। अब क्या हुआ कि वो बरकत तो हो गई। अब बुजुर्गों के पास गया, हजरत बरकत तो हो गई घर में, लेकिन मुझे पर्दे और बरकत का मसला समझ नहीं आया। बरकत तो अल्लाह ने नमाज के अंदर रखी थी, लेकिन पर्दे से क्या मतलब था? फिर बुजुर्गों ने समझाया कि तेरा घर रास्ते में था, रोजाना वहां से बेनमाजी गुजरते थे और बेनमाजियों की निगाह तेरे घर में पड़ती थी, इस वजह से अल्लाह ने बरकत डाली। तूने पर्दे डाले, पर्दे डाले, तूने अपने घर के ऊपर पर्दे डाले, बेनमाजियों की निगाह आना बंद हो गई, अल्लाह ने बरकत दे दी। अब एक गौर करना चला, एक सोचना, अब जिस घर के अंदर ही बेनमाजी वहां कहां से बरकत आएगी? एक बाहर के आदमी की निगाह पड़ने से, बेनमाजी की निगाह पड़ने से घर के अंदर से बरकत निकल रही है। जब घर के ही अंदर बेनमाजी मौजूद होंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए हमारा सारा परिवार, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी, ये बच्चे जो है ना माओ के ताबे होते हैं। सुनो, माओ के ताबे होते हैं, जैसा माओ को करते देखते वैसे बच्चे करते हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि माँ का वक्त नमाज पढ़ने का हो गया, अब इसने वजू बनाया, अब छोटा सा बच्चा भी वजू बना रहा है साथ में, पता उसको है नहीं, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह हाथ धो रहा है। और जाके क्या हो रहा है कि माँ मसल्ला बचा रही है तो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा भी अपना कपड़ा डाल रहा है। अब उससे माँ पूछे कि बेटा तू क्या कर रहा है? मैं तेरी तरह करूंगा जैसे तू कर रही है। अब वो नमाज पढ़ रही है, वो बच्चा भी वैसे ही कर रहा है, उसको पढ़ना सुनना कुछ नहीं आता। तो ये क्या है? माँ के ताबे है। माँ अगर इबादत गुजार होगी, खुदा की कसम औलाद भी इबादत गुजार होगी। माँ के अंदर ढीलापन है, औलाद भी ढीलेपन वाली। इसलिए माओ की जिम्मेदारी है, माओ के हवाले घर होता है। मर्द हजरा तो बाहर रहते हैं, कभी कभी शाम को आगे, सुबह आगे, बाकी तो घर तो यूं बताया कि माओ के हाथ में है। जो माए घर को बनाए, अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की ताकीद करें, अपने बच्चों को मीठा बोलना सिखाएं, अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं। एक बुजुर्ग है बड़े अल्लाह वाले, मेरे को नाम नहीं भी आ रहा है, वो गए रास्ते में मदरसे में जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनके कपड़े के अंदर थोड़े से पैसे सील दिए। देखो माएँ जब सच्ची होती है तो औलादें कितनी सच्ची होती है कि कपड़ों में पैसे सील दिए, वो बता दिए बेटा तेरे लिए है, तो उनको संभाल के रखना। अब रास्ते में गए, अब जा रहे थे, रास्ते में सब लोगों को चोरों ने लूट लिया। और बच्चे से पूछा भाई तू उसको साइड में कर, उसके पास तो है ही कुछ, देख लिया सारा, क्योंकि तो छुपा के रखे। तो बच्चा कहने लगा नहीं नहीं मेरे पास है,
सच बोलना है, मेरे पास है। क्यों? माँ की तरबियत है, माँ सच बोलना सिखा रही है कि अरे हमें तो मिले नहीं कहीं कि नहीं मेरी अम्मा ने यहाँ छुपा के रखे हैं मेरे लिए पैसे। ओहो, इतना सुनना था, है इतना सुनना था। उनके दिल के अंदर भी रहम आया। अल्लाह ने उस बच्चे की दावत के, उस माँ की कुर्बानी और बच्चे की सच्चाई के ऊपर अल्लाह ने उनको भी हिदायत दी। ये होता है जब माएँ सच्ची होती है तो बच्चे भी सच्चे होते हैं, माएँ झूठी तो बच्चे भी झूठे, क्योंकि माओं का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमारी जरूरत है हम लोग इसकी फिक्र करें, हमारे बच्चे सच बोलने वाले बने, हमारे बच्चे झूठ से बचें, हमारे बच्चे अल्लाह के फरमाबरदार बने, बड़ों की इज्जत करने वाले बने, हमारे बच्चे छोटों के साथ अच्छा मामला करने वाले बने, हाँ हमारे बच्चे ताबेदारी वाले बने, माँ बाप की बात मानने वाले बने, तब है मजा जिंदगी जीने का। ऐसे क्या आज कितने घर इतने हैं, कितने घर हैं जो बिरान पड़े हुए, माँ बाप की बेटी औलाद नहीं सुन रही है, बेटी माँ बाप की नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि हमने उनको सबक ही नहीं सिखाया। अभी एक साथी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ जमात में चल रहा है, तो उसके बाप ने आंखों से आंसू निकाला कि मीर साहब इसको ले जाओ साथ में और इसको बनाना। मैंने उससे कहा कि भाई जब बनाने का वक्त था उस वक्त तो आपने बनाया नहीं, अब क्या बनाऊंगा मैं से? सूखी लकड़ी जो है ना कभी गिली नहीं मर सकती। ये है मेरे मौजूद नहीं करो। इसलिए हम खुद भी अल्लाह के फरमाबरदार बने, अपनी औलादों को भी फरमाबरदार बना। हाँ, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि हमारा घर एक ऐसा घर बन जावे कि जब लोग बाहर से आए तो हमारे घर से बिल्कुल लेके जाए कि भाई ये बहनें भी नवाजी है, इनके बच्चे भी नवाजी हैं। हाँ, लोग देखा देखी के अंदर अमल करते हैं, जैसा देखते वैसा माहौल होता है। तो हमारे घरों के अंदर आदत बन जाए कि भाई अब नमाज का टाइम है। मैं तो यूं कहूं कि हमारे गाँव पड़ोसी अगर कोई तीसरा आदमी भी है हमारे मस्जिद से बाहर भी है तो उसको भी इतना पता चल जाए कि इस वक्त उस बहन का नमाज का टाइम है, नहीं बात करेगी हमसे। ऐसे कई घर हैं, कई घर हैं ऐसे जहाँ लोगों को पता है वो मिलने नहीं आते। क्यों? कि उस वक्त उनका नमाज का टाइम है, चाहे वो बेचारे दूसरे मस्जिद से है, बड़ी पाबंद है भाई, वो तो नमाज की पाबंदी है। इस वक्त नहीं, वो इस वक्त तो अल्लाह अल्लाह करेगी। अभी पीछे एक बलुओं के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, हमारे बशीर नाम का एक आदमी, उसकी घरवाली का बस के साथ टकराई, वो बेचारी वो तो हवा ही लगी उसको। तो गांव की गैर औरतें कह रही थी कि इसको कुछ नहीं हो सकता। गांव की गैर औरत कह रही, सुनो, गांव की गैर औरतें कह रही कि इस औरत को कुछ नहीं होगा। तो किसी ने पूछा भाई क्यों गाड़ी से टकराई है? कि नहीं ये 5 टाइम नमाज पढ़ती, इसको कुछ नहीं होगा। और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उनका वादा पूरा कर, आज वादा ठीक है, वरना उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा हमारा जज्बा, ऐसा हमारा माहौल बन जाए कि मुसलमान सच्चा होता है, मुसलमान अल्लाह की इबादत करने वाला होता है। आज हम खुद ही जो बेकार हो गए, इसलिए गैर लोग भी बोले ये नहीं हो, ये नहीं है, और तो मेरा नाम भी बचाओगे है। क्यों? क्योंकि हमें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम है कि उनको देख के तो गैर नहीं पढ़ना देते, उनके अखलाक, उनकी जुबान को देख के, उनके अमलों को देख के लोग भी मान लाते। तो ये है असल में जिंदगी जीने का तरीका। तो फिर क्या होगा मेरी मोहतरम बहनों, जब हम दुनिया से रुखसत होंगे, अल्लाह कहेगा आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे, तेरे लिए तूने दुनिया के अंदर कुर्बानी की, तेरे लिए मेरे पास सब कुछ है। ऐसा आराम है जिससे तुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, ऐसी सेहत है जो तुझे कभी बीमारी नहीं है, ऐसे फल है तूने खाने के बाद कभी भूख ही नहीं लगी, ऐसा पानी है उसको पीने के बाद तुझे प्यास ही नहीं लगेगी। बताओ, ऐसे महल है, ऐसे महल जिनके एक ही कमरे के अंदर 70,000 दरवाजे हैं, 70,000 दरवाजे जो सोने चांदी के बने हुए होंगे, सोने चांदी के मुश्किल गारे होंगे उनके अंदर। ऐसे महल हमको अल्लाह ताला देगा, लेकिन उसके लिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों ये छोटी सी जिंदगी के अंदर कुर्बानी देना पड़ेगा। मैंने सुनाया, आपने सुन लिया, इसके अंदर मसला हल नहीं होगा, बल्कि अमल से मसला होगा, क्योंकि इंसान के साथ अमल जाएंगे। इसलिए हम तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह में माफ कर दे, मैं पता नहीं था, अल्लाह तो उतने गफूर रहीम है। 70 साल का एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर को पूज रहा है, एक पत्थर बनाया उसी को पूज रहा है, रोजाना सुबह सवेरे शाम दोपहर शाम को उसको कह रहा है या सनम या सनम, क्योंकि अरबी जो है ना सनम के माने माबूद के होते हैं, अरबी के अंदर सनम जो कहते हैं वो माबूद को कहते हैं। अब वो सबने माबूद को नहला भी रहा है, दुल्हा भी रहा है, उसी के आगे हाथ जोड़ रहा है। 70 साल हो गए, 70 साल। एक दिन क्या हुआ, अचानक वो अल्लाह का करना था, बोलना था या सनम, बोल दिया या समद। समद अल्लाह का नाम है, सनम बोलते हैं माबूद को और समद बोलते हैं अल्लाह को। इतना उसकी जुबान से निकलना था कि अल्लाह की तरफ से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, बता मेरे बंदे क्या चाहता है।
فرشتوں کے اندر کو آرام مچ گیا جی. اللہ میاں 70 سال سے بدھ کو پتھر کو پوج رہا ہے, آج اس نے بھولے سے یا سمن کہا ہے اور آپ نے فوراً جواب دے دیا. ایسا کیوں, ایسا کیوں؟ اب سنو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہوگا. اے میرے فرشتوں, کیا میں ایسا ہی ہو جاؤں جیسے وہ 70 سال سے پتھر کو پکارا, کوئی جواب نہیں ملا؟ اگر میں نے بھی اس کی آواز کا جواب نہیں دیا تو پتھر اور مجھ میں فرق ہی کیا رہا. تو اللہ تو ایسے ہے. اگر آج بھی ہمیں عقل آ گئی, آج بھی ہم نے اللہ سے معافی کر لی ہے, معافی تلافی کر کے اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ لگا دیا, خدا کی قسم آج سے پہلے کی زندگی کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کا قانون ہے. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول کے رکھے ہیں. ہم اپنے آپ کو مایوس نہ کریں, مایوس نہ ہوں, بلکہ ہم تو اس چیز کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری آسان ہو جائے. اس لیے جو بھی عمل, جو بھی اللہ کا حکم ہے, ہم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں. اللہ نے کسی نمازی کی روزی نہیں چھینی ہے, کسی روزہ رکھنے والے کی روزی نہیں چھینی ہے, کسی دین کے کام کرنے والے کی روزی نہیں چھینی ہے, بلکہ جتنی روزی اللہ نے مقدر میں رکھی تھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتے ہیں جس کو اور میرے بھائیوں, ہم اس کی فکر کریں انشاءاللہ, نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے ایک تعلیمی ماحول کرو. اپنے گھر کے اندر روزانہ تعلیم کیا کرو. فضائل اعمال ہے, اول حصہ ہے, دوم حصہ ہے, منتخب حدیث ہے, ان کتابوں کو پڑھو. ہمارے